सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत मिसाली हुक्मरानी के लिए पाबंदे अहद, असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। असेंबली इजलास के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और केटीआर के दरमियान नोकझोंक, केटीआर ने कांग्रेस पर की तनकीद। असेंबली में पुराने शहर की तरक्की पर हुकूमत को अकबरुद्दीन ओवैसी की तवज्जो, उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ करने और डीएससी में उर्दू मीडियम की तमाम जायदादों की भर्ती का मुतालबा। असेंबली में साबिक वजीर आला केसीआर को अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लिया गया। स्पीकर ने असेंबली में किया ऐलान। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर की तकरीर पर इजहार तशक्कुर के मबाहिस हुए और इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत की आवाम ने खानदानी हुक्मरानी के खिलाफ फैसला दिया। इन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर था कि रियासत के वज़रा को भी प्रगति भवन में जाने की इजाज़त नहीं थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज प्रगति भवन के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए हैं और आज ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहां आम आदमी चीफ मिनिस्टर से मिल रहा है। ये कांग्रेस हुकूमत ही है जिसने प्रगति भवन की खारदार तार को निकालकर आवाम को अंदर जाने की इजाज़त दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मिसाली हुक्मरानी के लिए पाबंदे अहद है। इन्होंने मजीद कहा कि आमरीयत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जो लोग कल हुक्मरान जमात में थे, आज अवाम ने उन्हें अपोजिशन में भेज दिया है। మీకు గతాన్ని గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ గారు అక్కడికి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడానికి వెళితే ఒక హోంగార్డు మీకు అనుమతి లేదు, మీకు ప్రవేశము లేదు, మిమ్మల్ని లోనికి రానివ్వము అని చెప్పి వారిని అవమానించి ఒక హోంగార్డు హోంమంత్రిని వెనక్కి తిప్పి పంపించిన చరిత్ర పుటలలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది. ఆనాటి ఆర్థిక మంత్రి, ఆనాటి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ గారు ముఖ్యమంత్రిని కలవడానికి అక్కడికి వెళితే అక్కడ ఉన్న పోలీసు సిబ్బంది మీకు ప్రవేశము లేదు, మిమ్మల్ని నిషేధించినము, మీకు అర్హత లేదు, మీకు ఆ స్థాయి లేదు అని చెప్పి ఈటల రాజేందర్ గారిని ఆ ప్రగతి భవన్లకు ప్రవేశం లేదని తన సహచర మంత్రిని అవమానించి ఆ మంత్రే స్వయంగా కన్నీళ్లు పెట్టి ఈ ఆవేదనను, ఈ దుఃఖాన్ని లోపల అదిమి పెట్టుకున్న విషయాన్ని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు వివరించినప్పుడు తెలంగాణ సమాజమంతా దీన్ని గమనించింది. ఇదే కాదు, ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దరన్న 50 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన గలం విప్పి గజ్జగట్టి గొంగళేసుకొని తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఈ దేశంలోనే 100 కోట్ల ప్రజలను ప్రభావితం చేయగలిగిన గద్దరన్న ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడానికి ఆ ప్రగతి భవన్ గేట్ల ముందు ఎర్రటెండలో మండుతుంటే అక్కడ గంటల కొద్దీ నిలబడితే ఈ తెలంగాణ యుద్ధ నౌక, ఈ తెలంగాణ పోరాటానికి, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవమైన గద్దరన్నకే ప్రవేశం లేని ప్రగతి భవన్ను ఇవాళ బద్దలు కొట్టి నా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఆ ప్రగతి భవన్లు గేట్లను, ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టిన ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం, ప్రజలెన్నుకున్న ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రభుత్వం.
تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار نے BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR کو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے ایوان میں کیا اور اسپیکر جی پرساد کمار نے کہا کہ وہ BRS مقننہ پارٹی کو اصل اپوزیشن کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ BRS 39 ارکان رکھنے والی دوسری بڑی پارٹی ہے۔ اسپیکر کی جانب سے یہ اعلان گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث سے پہلے کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں گورنر کی تقریر پر اظہار تشکر کی تحریک پر مباحث ہوئے اور اس موقع پر اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور BRS کے رکن اسمبلی تارک راما راؤ کے درمیان لفظی نوک جھونک بھی ہوئی۔ تارک راما راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ریمارک کا جواب دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض NRIs کو جمہوریت کی روح کے معنی سمجھ نہیں آتے۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی عوام کے ذریعے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ انہیں دہلی سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ کس پارٹی نے NRIs کو لا کر پارٹی صدر بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کا کام K چندرا شیکھر راؤ نے کیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی ریونت ریڈی کی تقریر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ KTR نے مزید کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ کے لیے پانی اور فنڈز کے معاملے میں ناانصافی کی جا رہی تھی، لیکن یہ کانگریس قائدین ہی ہیں جنہوں نے اپنے عہدوں کے لیے اپنی زبان بند کیے ہوئے تھے۔ అర్థం తెలియని వాళ్ళు ఇవాళ అవాస్తవాలు చెప్తుంటే మేము చూస్తా కూర్చోవాలన్నా సార్, నిజాలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది। అధ్యక్ష వారు చెప్పారు నిన్న, మేము 2 గ్యారంటీలు అందులో చెప్పినారు, ఏది గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో 2 గ్యారంటీలు ఆల్రెడీ అమలు చేసినామన్నారు అధ్యక్ష। ఇది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు ఇవి। ఇక్కడ కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం పెట్టినరు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సంతకం పెట్టినరు। 6లో 2 అమలైపోయినాయి అన్నారు అధ్యక్ష। ఏంది అధ్యక్ష? మహాలక్ష్మిలో ఏం చెప్పినరు? ప్రతి నెల మహిళలకు 2500 రూపాయలు, 500 రూపాయలకే సిలిండరు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, అదేవిధంగా చేయూత అని ఇంకోటి ఉంది అధ్యక్ష, 4000 రూపాయలు నెలవారీ పెన్షన్, అదేవిధంగా 10 లక్షల రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ। బయటనేమో పోస్టర్లు వేసుకున్నారు, 2 రోజుల్లోనే 2 గ్యారంటీలు చేసినాం అధ్యక్ష। ఏం చేసిండ్రు అధ్యక్ష? మహాలక్ష్మిలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అనేది అంటే 3వ వంతు, ఆ 3వ వంతు కూడా మొత్తం చేయలే। సూపర్ లగ్జరీ కూడా ఫ్రీ అని పెట్టిండ్రు ఇచ్చినప్పుడు గ్యారంటీ కార్డుల మీద, ఇచ్చింది మాత్రం ఈరోజు పల్లె వెలుగు, సిటీ బస్సులు, ఆర్డినరీ బస్సులు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు తప్ప లగ్జరీ లేదు, గరుడ లేదు అధ్యక్ష। ఇంకోటి మరి నేను అడుగుతా ఉన్న, రాష్ట్రంలోని మహిళలందరి తరపున ఎవరైతే మీకు ఓటేసినారో వారందరి తరపున, ఓటు వేయని వారి తరపున కూడా అధ్యక్ష, ఈ 2500 రూపాయలు మహిళలకు ఇచ్చే కార్యక్రమం, రాష్ట్రంలోని మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం, 1.5 కోటి ఆడబిడ్డలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు, 1.5 కోటి మంది ఆడబిడ్డలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు। మా ఖాతాల్లో 2500 రూపాయలు ఎప్పటి నుంచి పడతాయి? 100 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామన్నారు। మార్చి 17 మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది, డిసెంబర్ 7 స్టార్ట్ అయింది, మార్చి 17కు 100 రోజులు నిండుతుంది। ఆ 100 రోజుల లోపల 1.5 కోటి మంది మహిళల ఖాతాల్లో 2500 వేస్తారా అయ్యారా? 90 లక్షల తెల్ల కార్డులు ఉన్నాయి। قائد مقننہ مجلس اکبرالدین اویسی نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے حیدرآباد کے پرانے شہر کی ترقی پر کانگریس حکومت کی توجہ مبذول کروائی اور شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے ارکان اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے حکومت پر زور دیا تاکہ ارکان اسمبلی شہر کی مسائل کو پیش کر سکیں، اور اکبرالدین اویسی نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے اردو زبان کے ساتھ انصاف کرنے اور DSC میں اردو میڈیم کی تمام جائیدادوں کی بھرتی کرنے اور ریاست میں منعقد ہونے والے مسابقتی امتحانات کو اردو زبان میں منعقد کرنے کی بھی مانگ کی۔ ائمہ و مؤذنین کے اعزازیے میں اضافہ کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا، اور اکبرالدین اویسی نے کہا کہ وہ اسمبلی میں تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے MLAs کی ایک میٹنگ بلائیے، ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے، اتنے اعلانات سب کچھ کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا۔ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ انصاف
हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, उर्दू को उसका जायज हक देंगे और उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि डीएससी का इनेकाद करेंगे। हम बार बार बोलते रहे हैं, राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से हम बोलते आए हैं और मैं राजशेखर रेड्डी साहब को हर वक्त याद करता हूं क्योंकि वो एक हमदर्द शख्स थे। और अगर कोई कहता है कि हम कांग्रेस के करीब थे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के करीब राजशेखर रेड्डी की वजह से थे, उनके अखलास की वजह से थे, उनकी मोहब्बत की वजह से थे, उनके हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करने की वजह से थे। हम राजशेखर रेड्डी साहब के बेशक करीब थे, हमारे काम करते थे। और आज हम आपसे मुतालबा करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ करिए। डीएससी को उर्दू के पोस्ट जो होते हैं उसमें आप डीएससी जब करते हैं तो एससी एसटी और बीसीज रहते हैं। वो एससी एसटी बीसीज को उर्दू नहीं आती है, लेकिन कानून ये कहता है कि आप एससी एसटी को वो पोस्ट दें, तो आपको चाहिए कि आप 2 वक्त उसका नोटिफिकेशन दें। 2 वक्त नोटिफिकेशन देने के बाद वो जितने एससी एसटीज के और बीसीज के उर्दू के जो पोस्ट हैं जो अनफिल्ड हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपकी थिंक टैंक आपको बोलेगी और कहेगी कि उर्दू के पोस्ट के लिए, उर्दू के लिए इंसाफ के लिए मैनिफेस्टो में यह बात डालेंगे कि हम उर्दू के पोस्ट को डिरिजर्व करेंगे, लेकिन यह काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह काम करेंगे। उर्दू जब दूसरी सरकारी जबान है तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रमोशन के एग्जाम्स हैं डिपार्टमेंटल, उसको उर्दू में भी मुनक्किद करना चाहिए। यह जरूरी है, यह काम नहीं हो रहा है। और जितने रिक्रूटमेंट के आपके एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स को भी उर्दू में रखिए, यह भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन बातों पर तवज्जो देंगे। बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली हरीश राव ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि 2004 के इंतखाबात के दौरान बीआरएस व साबिक वज़ीर आला केसीआर ने ही उन्हें ज़िंदगी बख्शी थी। उन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से उस वक्त बीआरएस के अरकान असेंबली को वजारत का ओहदा दिए जाने के बयान की शदीद मजम्मत की। हरीश राव ने कहा कि साबिक वज़ीर आला केसीआर ने वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत से 14 माह में इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने 610 GO पर अमल नहीं किया था और केसीआर ने अलहदा तेलंगाना के लिए मरकजी वजारत का ओहदा छोड़ दिया था। అధ్యక్ష ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ మేమేదో పదవులు ఇచ్చినామని, పదవులను గడ్డిపోచల్లాగా త్యజించిన చరిత్ర ఈ దేశంలో ఎవరికన్నా ఉందంటే అది కేసీఆర్ కు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది. త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ తెచ్చిన చరిత్ర ఉంది అధ్యక్ష. అనవసరంగా మేమేదో పదవులు ఇచ్చినామని, మేమేదో పదవుల కోసం పాకులాడినామనేటువంటి విధంగా వారు మాట్లాడొద్దు. ఆ విషయానికి వస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏబీవీపీలో షురువు అయిండు, టీఆర్ఎస్లో పనిచేసిండు, తెలుగుదేశంలో వేయండు, కాంగ్రెస్లో వేయండు, మరి రేపు ఏడుంటాడో. పార్టీలు మారిన చరిత్రలు మీకున్నాయి కానీ तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने असेंबली इजलास के दौरान पैनल स्पीकर के नामों का ऐलान किया है। पैनल स्पीकर में कांग्रेस की जानिब से रेवरी प्रकाश रेड्डी, बालू नायक और एमआईएम की जानिब से कौसर मोहिउद्दीन और सीपीआई की तरफ से के सांबा शिवा राव को नामजद किया गया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रिमार्क किया कि कांग्रेस पार्टी के कायम करदा निज़ाम को बीआरएस पार्टी ने तबाह कर दिया है। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मबाहिस के दौरान साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन तारक रामाराव की जानिब से कांग्रेस के दौरे हुकूमत पर की गई तनकीद पर मुदाखलत करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से जो निज़ाम कायम किया गया था उसको बर्बाद करने का काम बीआरएस ने किया है। ప్రభుత్వం మారింది, ప్రజలు అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా తీర్పిచ్చారు. మేము చాలా విషయాల హృదయంతో ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా సభను నడుపుకుందాం, ఉన్నటువంటి విషయాలపైన లోతుగా చర్చిద్దాం, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సూచనలు మీరు ఏమిచ్చినా మేము తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాం.
तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने केरला के सबरीमाला में अयप्पा स्वामी के लिए बेहतर इंतजाम फराहम करने के लिए केरला के वजीर आला पिनराई विजयन से मुतालबा किया और इस ज़िमन में इन्होंने वजीर आला को एक खत भी लिखा। किशन रेड्डी ने कहा कि इस मामले में मरकजी हुकूमत रियासत के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। तेलंगाना के परगी में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 45 लाख से ज़ायद की रकम मंजूर की गई है और इस ज़िमन में तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार व सीनियर एडवोकेट मकसूद अहमद ने बात करते हुए कहा कि ज़िले विकाराबाद के परगी में 6, 7 और 8 जनवरी को 3 रोज़ा इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इज्तिमा की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस इज्तिमा के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करते हुए इज्तिमा के इंतजामात के लिए स्पेशल GO जारी करते हुए 2 करोड़ 45 लाख से ज़ायद रकम मंजूर की है। इस रकम की मंजूरी पर एडवोकेट मकसूद अहमद ने तबलीगी जमात की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। आज मैं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि 13 तारीख के दिन चंद अफराद सेक्रेटेरिएट पहुंचकर रेवंत रेड्डी साहब के पास 6, 7, 8 जनवरी को तबलीगी जमात का एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया है, जिसके ताल्लुक से रेवंत रेड्डी साहब ने पूरा रिव्यू मीटिंग लेकर तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा कदीम व बाफैज़ इदारा दारुल उलूम के तलबा ने मस्जिद अक्सा का मॉडल तैयार करते हुए आज सुबह असम्बली के मौके पर अपने बनाए हुए मस्जिद अक्सा के मॉडल की रौनुमाई करवाई और तलबा ने हरमैन शरीफैन के मॉडल को भी पेश किया। इस मौके पर मौलाना शहबाज ने तलबा को मस्जिद अक्सा की हुदूद और इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया और इसी मुनासिबत से मौलाना अब्दुल रहमान कासमी ने तलबा के दरमियान मस्जिद अक्सा की तारीख पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर सातिज़ा दारुल उलूम के अलावा दीगर भी मौजूद थे और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुसलमानों के नज़दीक क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के साथ कैसा मुतबरिक मुकाम है और ये अंबिया इकराम का मस्कन रहा और आज इसराइल अपने जालिमाना कदम फ़लस्तीन पर जमा कर वहाँ की बेकसूर मुसलमानों के खून की होली खेल रहा है और ये देखते हुए सारी दुनिया तमाशाई बनी हुई है। कोई इसराइल को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसी एहसास के तय नलगुंडा के कदीम व बाफैज़ इदारा दारुल उलूम में तलबा ने आज अपने हाथों से मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाते हुए ये बात बताने की कोशिश की है कि मस्जिद अक्सा हमको जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। आज हमारे लिए खुसूसन दारुल उलूम के लिए और असातिज़ा दारुल उलूम के लिए वहीं खाहान दारुल उलूम के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा हमारे तलबा ने अंजाम दिया है। वो है कि हमारा सबसे पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला है, सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िबला है, आज उसका नाम सुर्खियों में हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जहाँ फ़लस्तीन का मसला और सैहूनी अंग्रेज़ हमारे इसराइल ने एक दहशत मचा रखी है और निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रखा है। वो ये मकाम है जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमान नमाज अदा करते हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर, जो हमारा क़िबला है, हमारा रूहानी रिश्ता है उससे, सारे ईमान वालों का उससे ताल्लुक़ है और वो हमारा क़िबला कहलाता है। इसी तरह से तलबा ने तेलंगाना के खानापुर में उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली गई। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से RTC बसों में खवातीन के मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी की वजह से उनका रोज़गार मुतासिर हुआ। इन्होंने हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने और उनकी माली मदद करने का हुकूमत से मुतालबा किया और ये रैली खानापुर टाउन में MPDO ऑफिस से तेलंगाना चौराहे तक निकाली गई।
ओल्ड सिटी मेगा जॉब मेला एसोसिएशन और एमबी एंड डेवलपर की जानिब से मंगल 19 दिसंबर 2023 को मास्टर टैंक ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में एक जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। दक्कन ब्लास्टर मास्टर के चेयरमैन वो इंजीनियर मन्नान खान से इस जॉब मेले से इस्तेफादा करने बेरोजगार नौजवानों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि जॉब मेला सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक्किद होगा। इसके लिए 10वीं जमात और डिग्री कामयाब उम्मीदवार हाजिर हो सकते हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस हुकूमत मिसाली हुक्मरानी के लिए पाबंद अहद, असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। असेंबली इजलास के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी केटीआर के दरमियान नोक-झोंक, केटीआर ने कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में पुराने शहर की तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो करवाई मबसूर, उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ करने और डीएससी में उर्दू मीडियम की तमाम जायदादों की भर्ती का किया मुतालबा। असेंबली में साबिक वजीर आला केसीआर को अपोजिशन लीडर कर लिया गया तस्लीम, स्पीकर ने असेंबली में किया ऐलान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।